ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗਊਆਂ ਤੇ 15 ਤੋਂ 20 ਬੱਚੇ-ਬੱਚੀਆਂ ਉਸ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਦੋਂ ਸਨਾਤਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ 15-20 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਉਸ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ। ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਏਪੁਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ, ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਊਆਂ ਮਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਦਫਨਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸਨਾਤਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੌਲੀ ਜਗਰਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇੰਨੀਆਂ ਗਊਆਂ ਕਿਵੇਂ ਮਰੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਗਊਆਂ ਦਾ ਮਾਸ ਅੱਗੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੇਜਵਾਨ ਜਾਨਵਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਗਊ ਮਾਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਫੇਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, 60 ਗਊਆਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ 15-20 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਾਏ ਗਏ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਗਊਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਖੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਜੋ ਸਨਾਤਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ भी सुन लो। आपका किस संस्था से जुड़े हैं? जगदीश नाम है मेरा वो ग्रुप बन रखा हमारा विश्व परिषद नाम से। तो उधर हमारे भाइयों ने एक वीडियो डाली थी एक, उससे हमें पता चला और बाकी भाई लोगों को पहले पता चल चुका था। फिर हम आए सारे भाई लोग, फिर हमने आके देखा तो उस टाइम कोई भी गड्ढे पटे हुए नहीं थे, उस गड्ढे में कुछ भी नहीं था। तो हमने देखी तो गाय तब तक पाट चुके थे उसमें और इधर गड्ढे खुद रहे थे। तो हमने आके रोका इनको और फिर भाई सारे आ गए, तब काम बंद हुआ है, वैसे बंद नहीं कर रहे थे। पुलिस यहाँ पर मौके पर पहुंची, बाकी आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, उनकी तरफ से क्या आश्वासन दिया? वो बस कह रहे हैं टाइम चाहिए, कुछ कर है नहीं रहे। दो कम से कम हमें 12 बजे के करीब खबर पहुंच चुकी थी और अभी तक 3 बजने वाले हैं, अभी तक कोई खबर नहीं आई है। ठीक है। कहा जा रहा है कि सीधे तौर पे कितने खामियां ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਖਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਬਰਬਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬੋਡੀਜ਼ ਪਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਵੰਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰ ਗੋ ਮਾਤਾ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀਜ਼ ਪਈਆਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਈਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪਾਰਸ਼ਦ ਇੱਥੇ ਕਰੁਣਾ ਮਹਿਤਾ ਜੀ, ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਪ੍ਰੇਮ ਲਤਾ ਜੀ, ਸਚਿਨ ਗਾਲਵ ਜੀ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਟੇਲਡ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਏ ਔਰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਗਏ, ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਦੀ ਇੱਧਰ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਇੰਨਾ ਕਾਉਸੈਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ 'ਚ ਪੈਸੇ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 2.3 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਗਿਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਉਸ ਤੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ।
कैसे बताया जा रहा है कि कितने इस समय गायों के शव जो हैं वो अंदर हैं और कितनों को दफनाया गया आनंद फानंद में? 20-22 के करीब दफना दिया और 50-55 के करीब अंदर है। क्यों अब तक इनका जो है वो दाह संस्कार जो है वो नहीं किया गया? वो एक तो भट्टी हमारी खराब होने के कारण 3-4 दिन से वो भट्टी ठीक नहीं हो पा रही है, और ये जो जाते थे जानवर यहाँ से मलोए से जो जड़ते थे तो वहाँ से बंद हो गए कुछ दिनों से, तो ये 3-4 दिन से लगातार गाड़ियाँ आ रही हैं। तो इस बात की जानकारी आपने उच्च अधिकारियों को दी? जी उनके पास है जी, अधिकारियों के पास हमारी जानकारी पूरी है जी उनके पास। और जिस तरीके से जो आरोप लग रहे हैं कि हड्डियां जो हैं वो गली पड़ी हुई हैं, ये कहाँ से आ रहा है इस सारे? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है जी, गली हुई हड्डियाँ तो नहीं देखी हमने, ना हमारे पास है कोई गली गड्डी, क्योंकि हमारे पास जो है वो भट्टी है वो जल सकती है, उसी में जल जाता है सारा। अंदर कहा जा रहा है कि यहाँ पे शराब के सेवन भी होते हैं, दारूं की बोतल्स पड़ी हुई हैं अंदर। नहीं जी ऐसा तो कुछ नहीं है, बाहर के कुछ तत्व होते हैं, जो कुछ तत्व होते हैं बाहर के तत्व आते हैं बैठे रहते हैं, जिनको हम कहते हैं कि हट जाओ, तो वो अपना नहीं अब करते हैं, हमारे को नहीं समझते कुछ, तो उनको क्या कह सकते हैं जी। तो अब जब आपने उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना दी थी तो उसके बाद उनकी तरफ से क्या आश्वासन दिया गया? उन्होंने ये बोला कि गेट बंद करो, गेट से आने देना, लेकिन गेट तो हम बंद नहीं कर सकते, मार थोड़ी खानी है। हर बंदे इतने कठोरता से बोलते हैं कि आपके बाप की गौशाला है कि ये है, इस तरीके से मजबूर करते हैं। ठीक करवाने के लिए कब तक ठीक होगी? कब से? ये 11 तारीख से आए थे जी उनके मेंटेनेंस वाले बंदे, तो 11 तारीख को वो लिख के लेके गए जी मेरे से, ये कापी मैंने आपको दिखा दी, जिसके कारण उन्होंने बोला है कि 1-2 दिन में रिपेयर हो जाएगी, उसके बाद ये जलाना शुरू कर देंगे जी हम। तो वो आज 3-4 दिन हो गया, अभी तक तो वो आए नहीं ठीक करने। तब से लेकर अब तक कितने शव पहुंचे होंगे यहाँ पे? 70 के 75 के करीब। तो अभी कितने अंदर हैं और कितने दफनाएंगे? 20-22 के करीब दफना दिए हैं, 55 के करीब वो अंदर होंगे, छोटे बच्चे बड़े बच्चे रहेंगे। नहीं क्या है यहाँ पर, ये बताइए। डॉक्टर वो जी ये बताएं कि क्या कुछ हुआ यहाँ, जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं कि 400 से 500 गाय मरी पड़ी थी, उसके बाद तमाम चीज़ें हुई। सर ऐसा है, जो गाय शहर से मरती है उसको हम यहाँ पे जलाने के लिए लेके आते हैं, और 2-3 दिन से इस प्लांट खराब होने की वजह से 2-3 दिन के इकट्ठे हुए जानवर, और ऐसा कुछ नहीं है, बाहर से कोई 400-500 गाय नहीं आ सकती। 3 दिन का वो स्टॉक इकट्ठा हो गया, हमारी मशीन नहीं चली। तो अभी क्या प्रोसेस है? अभी कितने शव वहाँ पर पड़े हुए हैं गायों के? अभी मेरा ख्याल एग्जैक्ट तो मेरे को पता नहीं, पर 40 के करीब हो गए, 30-35। तो अभी आप उस शेड में ही प्रॉपर देखभाल कर रहे हैं, उसकी सारी जिम्मेवारी आपकी के ऊपर? उसको अभी हम गड्ढा खुदवा के ना उसको दबाएंगे। कोई भी मरा हुआ जानवर है उसके 2 ही तरीके हैं, या तो उसको जला दो या उसको दबा दो जी। अभी क्योंकि जलाने वाला हमारा वो सिस्टम खराब हो गया, तो अभी हम उसको दबा रहे हैं, उसमें नमक वगैरह डाल के। तो जो लोगों में इतना रोष देखने को मिल रहा है, इसकी क्या वजह है? लोगों को एक्चुअली मिसगाइड किसी ने कर दिया कि यहाँ से ही मरी हैं, ये ऐसी बात नहीं है, ये पूरे शहर से है, और 3 दिन का वो 11-12-13 हर रोज पूरे शहर से जो उठा के हम यहाँ पे लेते हैं। पहले इससे पहले ये प्लांट चलने से पहले ये हड्डारुड़ी में जाते थे, वहाँ पे जो ट्रेडिशनल मेथड है जो सारे हिंदुस्तान में चलता है वो चलता था। वो थोड़े दिन पहले वो तो हमने जब से ये चल गया वो बंद हो गया, ठीक है ना। अब ये मशीन खराब होने की वजह से ये प्रॉब्लम आई। ठीक है सर जी सर, इनका कहना है कि कई जानवरों की आंखें निकली हुई थी, आप नहीं ना, उसका क्या रहा? भाई साहब ऐसा है, जब मरा हुआ जानवर है ना, वैसे नहीं, आप वैसे पूछ लो हमारे सामने, ऐसे नहीं होता यार। अगर मरा हुआ जानवर है उसमें कई बार कौवे वगैरह ठोंगे मार देते हैं, जो हो रहा है ऐसी कोई आंखें कोई निकल। आप सर कौन कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें लगे हुए हैं, किसमें लगे हुए हैं? मैं ओवरऑल इंचार्ज हूँ, ओवरऑल गौशाला के भी और कार्कस प्लांट का भी। सर आपका नाम? डॉक्टर आज मैं आपको सचिन जी, क्या मसला है ये सारा? आज हम रायपुर कला जो हमारी गौशाला है कॉर्पोरेशन की, वहाँ आए थे। लाखों करोड़ों रुपया इनको साल का कॉर्पोरेशन की तरफ से मिलता है, पर यहाँ आके जब हमने स्थिति देखी, हमने पता चला कि यहाँ तकरीबन 40 से 50 गायें तो इन्होंने दफना दी थी, और 60 से 70 गायें मरी भी पड़ी हैं, जिनकी आंखें नहीं है, किसी के पैर टूटे हुए हैं, और उसमें से ज़्यादातर गायों की आंखें नहीं हैं। और दूसरी तरफ देखते हैं उसमें छोटे छोटे गाय के बच्चे भी, अभी आपने देखा उनके बछड़े हैं, उनका भी वो भी मरे हुए हैं। जब प्रशासन से बात करी तो वो कहते हैं जी ठंड में मर गई। ठंड में मरी होती तो उनकी सभी की आंखें ठंड में निकल गई, या उनके पैर ठंड में टूट गए, और अंदर जो गायें थी अभी भी जो जीवित है उनका भी हाल इतना बुरा है, किसी की आंखें नहीं है, किसी की चोट लगी हुई है, किसी के पीछे किसी के आगे कहीं चोट लगी हुई है।
ये साफ कहीं ना कहीं इसके अंदर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की कोई बड़ी लापरवाही के साथ साथ कोई ना कोई ऐसी इन्वॉल्वमेंट है जो इनकी तस्करी की तरफ लेके जाती है। कहीं इनके अंगों को बेचा जाता है। 30 से 40 करोड़ रुपए तो हम ही इनको साल का एक पता नहीं हम यहाँ देते हैं, अच्छे नंबर में पैसा देते हैं कॉरपोरेशन की तरफ से, एग्जैक्ट मुझे फिगर नहीं पता, पर उतना पैसा होने के बावजूद जो ये गाँव का हाल है, और ऊपर से हमारी मेयर भी यहाँ पर भाजपा की है। इस सरकार को मैं शायद इस बात को पॉलिटिकली उस तरीके से कहना नहीं चाहता था, पर शायद भाजपा हमेशा गांव की राजनीति करती है, गौशाला पे राजनीति करी है, गाय हमारी माता है, राम भगवान। और अब आप इस शहर के अंदर, एक कैपिटल सिटी के अंदर इतना बुरा हाल है जहाँ आपके पास कोई आंसर नहीं है, आप सर एक दूसरे पर बात फेंक रहे हैं, तो ये बड़ा मामला है। और हम इस चीज़ को आगे भी जरूर हम कोशिश करेंगे। जिन गाँव के साथ गलत हुआ, जिन गौ माताओं के साथ गलत हुआ, वो तो हम ठीक नहीं कर सकते, पर आगे शायद किसी गौ माता के साथ गलत ना हो। इसी मुहिम के साथ आज हजारों लोग यहाँ चंडीगढ़ के इकट्ठा हुए हैं। एक शर्मनाक हरकत है, शर्मनाक बात है। कॉरपोरेशन को सोचना चाहिए कि अगर हम यहाँ पर इतना पैसा उनकी सेवा के लिए लगा रहे हैं, पर उनका हाल, हमें क्या कारण पड़ गया उनकी आंखें निकालने का, क्या कारण रहा कि उनकी लातें टूटी हुई हैं और उनको दफनाया जा रहा है। 40 से 50 गायें तो इन्होंने हमारे आने से पहले दफना दी थी। बाकी जो है जेसीबी लेकर खड़े थे, उन्हें भगाया, यहाँ से हमने भेजा है। और इसमें अगर अभी तक तो इसमें कोई मुसलमान इन्वॉल्व नहीं है। अगर मुसलमान हुआ था तो हिंदू और मुसलमानों को इन्होंने कह देना था कि ये दंगे करवा सकते थे, क्योंकि एक इसमें गलत जो करता है उसकी कोई जात धर्म नहीं होता। वो हिंदू भी गलत हो सकता है, मुसलमान भी गलत हो सकता है, सिख भी, ईसाई भी, किसी भी धर्म जात का हो सकता है। पर ये जो स्थिति है आज, ये शर्मनाक स्थिति है।